ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று சஷ்டி, அதனால முருகப்பெருமானுடைய பெருமைகளை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லக்கூடிய ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் இயற்றிய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பார்க்கலாம். ஒருமுறை ஆச்சாரியாளுக்கு அபிநல குப்தர் அப்படின்றவர் அபிச்சாரம் பண்ணதாகவும், அதாவது அபிச்சார மாந்திரிக ஏவல் பண்ணதாகவும், அதனால அவர் கடுமையான வயிற்று வலியில சிரமப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அப்போ அவரோட கனவுல கோக்கர்ணத்துல இருக்கிற சிவபெருமான் கனவுல நீ போய் ஸ்ரீ ஜெயந்திபுரம்ன்ற திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான வேண்டிக்கோ, எல்லா உடல் உபாதைகளும் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்றார். ஆச்சாரியாலும் உடனே ஸ்ரீ ஜெயந்திபுரம்ன்ற திருச்செந்தூர் திருச்செந்தில் ஆண்டவரை மனமுருக வேண்டி அந்த பன்னீர் இலை விபூதிய சாப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷமே அதுவரை அவரை வாட்டி வதைத்த வயிற்று வலி அறவே நீங்கிடுத்து. அப்போ அவருடைய நாவில் உதித்ததே இந்த 33 ஸ்லோகமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்கம். அவர் அங்க சுவாமி தரிசனம் பண்ற போது ஆதிசேஷன் சுப்பிரமணியருக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். அதனால அவருக்கு புஜங்க விருத்தம் ஞாபகம் வருது. சர்ப்பத்துக்கு புஜங்கம்ன்ற பேரும் உண்டு. அதை தவிர திருச்செந்தூர் கடற்கரையில இருக்கிறதுனால அலைகளுக்கும் புஜங்கம்னு பேரு. அப்படி புஜங்க விருத்தத்துல அவரோட வாக்குல இருந்து வந்த அழகான ஸ்தோத்திரம் தான் இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கம். இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை பல மகான்கள் மகா மந்திரமாவே ஔஷதமாவே நினைச்சு பாராயணம் பண்றா. இதுல உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒவ்வொரு பலனை அளிக்கக்கூடிய வகையில அமைஞ்சிருக்கு. அது இதோடைய சிறப்பம்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம். யார் ஒருவர் இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை மனமுருக பாராயணம் செய்யறாளோ அவர்களுக்கு தீராது என்று நினைத்த பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும். அது மட்டுமல்லாது தீராது என்ற தீய கர்ம வினைகளையும் தீர்க்கக்கூடியது. திருஷ்டி தோஷம், உடல் நோய், மனநோய் அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடியது. ஏவல், பில்லி, சூனியம் போன்ற தீய சக்திகளையும் விரட்டக்கூடியது. அப்பேற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்திரம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை மனமுருக பாராயணம் செய்ய குருவருள் திருவருள் இரண்டுமே ஒரு சேர கிடைக்கும் என்பது உறுதி. நாம இப்போ ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் சங்கர பகவத்பாத விரச்சித ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரம். சதா பால ரூபாபி விக்னாந்திரிஹந்த்ரி மகாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்ய மான்யா விதீந்திராதி மிருக்யா கணேஷாபிதாமி விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாண மூர்த்திஹி. न जानामि शब्दं न जानामि चार्तं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चिदेका षडास्या हृदि द्योतते मे मुखान्निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रं मयूरादिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महच्चित्तगेहं महीदेवदेवं महावेद भावं महादेव बालं भजे लोकपालम्. यदा सन्निधानं गता मानवामि भवाम्बोधिपारं गतास्ते तदैव इति व्यञ्जयन् सिन्धुतीरे य आस्ते तमीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम्. यदाब्दे तरङ्गालयं यान्ति तुङ्गास्तदैव पदः सन्निधौ सेवतां मे इति ऊर्मि पङ्क्तिर्नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे गुहन्तम्. गिरौ मन्निवासे नरायेधिरूढास्तदा पर्वते राजते तेधिरूढाः इतीव ब्रुवन् गन्धशैलाधिरूढः सदेवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु. महाम्बोधितीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले गुहायां वसन्तं स्वभासालसन्तं जनार्तिं हरन्तं श्रयामो गुहन्तम्. लसत्स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोमसञ्चन्नमाणिक्यमञ्चे समुद्यत्सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम्. रणद्धंसके मञ्जुलेऽत्यन्तशोणे मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे मनःषट्पदो मे भवक्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे.
सुवर्णाभदिव्याम्बरैर्भासमानां क्वणत्किङ्किणीमेखलाशोभमानां लसद्देमपट्टेन विद्योतमानां कटिं भावये स्कन्दते दीप्यमानाम् पुलिन्देशकन्यागणाभोगतुङ्गस्तनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागम् नमस्याम्यहं तारकारे तवोरस्त्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् विदौ क्लुप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते बशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्त्राणशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा शारदा षण्मृगाङ्का यदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाः कलङ्कैश्च हीनास्तदा त्वन्मुखानां भ्रुवे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चञ्चत्कटाक्षावलिभृङ्गसङ्गोज्ज्वलानि सुदास्यन्ति बिम्बादराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्बोरुहाणि विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रं दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु मयीषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेत् भवेत् ते दयाशीलकानामहानिः सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति षड्धा जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिग्रतेयान् जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथ तेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामश्चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादराच्चङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारेश सूनो गुहस्कन्दसेनापते शक्तिपाणे मयूरादिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तातिहारिन् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वम् प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्टे कपोद्गारि वक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं द्रुतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम् कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपाद्दहच्चिन्दिबिन्दीति मां तर्जयत्सु मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वं पुरःशक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रम् प्रणम्य सकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारम् न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा सहस्राण्डभोक्ता त्वया शूरनामा हतस्तारकसिंहवक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदिस्थं मनक्लेशमेकं न हंसि प्रभो किं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लप्तबाधं ममादिं द्रुतं नाशयो मासु तत्त्वम् अपस्मारकुष्ठक्षयाश्रप्रमेहज्वरोन्मादगुल्मादिरोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात् तारकारे द्रवन्ते
दृशि स्कन्दमूर्तिश्रुतौ स्कन्दकीर्तिर्मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम् करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजामभीष्टप्रदा सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदानि गुहादेव मन्यं न जाने कळत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वा तनारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तस्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार मृगाः पक्षिणो दंशकाये च दुष्टास्तथा व्याधयो बाधकाये मदङ्गे भवच्चक्तितीक्ष्णाग्रभिन्ना सुदूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रौञ्च शैल जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सखेतेन किं देवसेनादिनाथ अहं चाति बालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनः स्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु जयानन्दभूमं जयापारधामं जयामोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते जयानन्दसिन्धो जयाशेषबन्धो जयत्वं सदा मुक्तिदानेश सूनो भुजङ्गाख्यवृत्तेन क्लप्तं स्तवं यः पठेद्भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणम्य सपुत्रान् कळत्रं धनं दीर्घमायुर्लभेत् स्कन्दसायुज्यमन्तेन रसः भुजङ्गाख्यवृत्तेन क्लप्तं स्तवं यः पठेद्भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणम्य सपुत्रान् कळत्रं धनं दीर्घमायुर्लभेत् स्कन्दसायुज्यमन्तेन रसः इति श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीसुब्रह्मण्यभुजङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्. நாம் மகாமந்திரமும் ஔஷதமுமான இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை தினந்தோறுமே பாராயணம் செய்து குருவருளும் திருவருளையும் ஒரு சேர பரிபூர்ணமாக பெறுவோம். நமஸ்காரம்.